Hello, everyone. Welcome to our show. Let's call it as a show. Uh, in this video, we have brought something very specific for you. The person who is sitting in front of you, his name is Ritobrtar Chaudhary. He completed his bachelor's from BHU. We taught him the basics of biology. Then he went to Cambridge, did excellent work there in his MPhil. Now he's started to work in a PhD project with a very good fellowship. So we would like to have some of the questions from Ritobrata, and then we would also ask him about the life in BHU. So welcome Ritobrata. Thanks for coming to BHU. We would be happy to ask few questions from you. And the first question I would like to ask you that please tell something, some basic background about people, like about your study. Thank you very much, sir. It's my honor. Hello, everybody. I'm Ritabhrata Chaudhary. I did a BSc in zoology, BSc honors in zoology from BHU, from this department, and I passed out in 2021. After that, I went and joined for an MPhil in biological sciences in zoology at the University of Cambridge at the Department of Zoology, and it ended in February 2023 this year. And after that, from April 2023, that is from April this year, I have joined as a PhD student at the same lab at the Department of Zoology at the University of Cambridge in UK. And my main research area is in the field of insect ecology, evolution, and biomechanics. And I look at how insects and plants interact with each other, and how and what it means for the ecology and for the general well-being of the ecosystem, and also how the evolution of such interactions have come about, and what would it will it be what would its implications be in the near future. So, Ritobrata, this journey from BHU to Cambridge, how did you tell it in few words that the journey started from BHU and then the teaching facilities, teaching faculties, both of them have very different scenario, very different. Even the language is quite different. Even I mean, the English speaking population speaks very different accent of English. How did you cope with all these? Initially, I mean, research wise, I would say I was already prepared, because during my bachelor's, I had worked with Professor Chaubey, who's here. I've worked with other professors in this department, and research wise, I had prepared myself, and I had worked on entomological models. Therefore, it was not that big of a problem for me. But yes, definitely English wise, language wise, and culturally, there was quite a bit of difference when I moved from BHU to the UK. And also, one important thing is that weather-wise, also, because I reached the UK in the middle of winter when it was almost snowing, so it was a bit difficult for me. It took me a few months to adjust and prepare, and then also we had to work and deliver within 1 year, which is also a task. And at that time, I definitely didn't have a lot of time to relax in the last 1 year. But yes, it was a very enjoyable journey from BHU to Cambridge. And yes, even though I'm in Cambridge, I would not say that it is like it is like absolutely, there's a very huge difference between the two. There are two very different places, but the culture and the atmosphere is quite similar, both in BHU and in Cambridge. So, please tell something about your family background. Uh, um, about my family, I was born in Barakpur in Kolkata, and I did my schooling from St. Xavier's Collegiate School, where I studied from class 2 to class 12. My father, I was mostly with my mother and my both set of grandparents. Both my maternal and my paternal grandparents were always with us.
because my father had a transferable job. He's in government service. Therefore, my mom chose to be a homemaker so that she could give me a proper proper childhood and help me grow. And definitely, her she has her her efforts have been quite as has been extremely like all the effort she has put into this definitely has made me what I am today. And both similarly for my father, who has always supported me, and again my grandparents were there, so it was a very I had a very nice childhood in that sense because I had both my grandparents. And after that, right now we live in Baroda because of my dad's transferable job, and we are now living in Baroda. And I unfortunately do not have any siblings, so I cannot celebrate Rakhi. But then I go back, and then right now I will. But then it has been quite a nice journey for me, and my parents are also equally excited with the fact that I came to BHU to study, and then I'm now in the UK. Even though they're a bit sad because because I'm living very far away from them, and they're always asking me to come back. In BHU, I have seen you one of the most laborious student, और ऐसा स्टूडेंट जो कि रिस्क ले सकता है, खुद से प्रोजेक्ट बना सकता है, and who can even work in a raw project which is without any support of a faculty or without any support of a supervisor. So how did you develop these kind of skills in you? Uh, Frankly speaking, the main thing motivation for me, of course, was that the research project, the questions that we were looking at were absolutely new. It was novel, and again, it was very exciting. That now it was now the first drive. Secondly, to very frankly, I was able to take the risk because my supervisor, for example, Professor Chaube, and I've also worked with Professor Neil Kamal Rastogi in this department. They supported me. They supported me when nobody else would, and gave me the space to actually do something for myself and let me take that risk. And that is definitely one of the reasons why I was able to also develop and maybe to an extent deliver these projects. And although maybe the projects I was working with did not directly align with what the lab was currently working, but I always had the support of the seniors, had the support of professors, and then Professor Chaube, Professor Rastogi in that case, and I always had the support of other seniors in this department who always, and even classmates who always helped me to progress. BHU के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत, मतलब दे आर सो लेबोरियस, दे हैव सच ए ग्रेट नॉलेज. थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है, दैट यू माइट हैव आल्सो एक्सपीरियंस. उनके साथ एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि वो लोग सोचते ही नहीं कि एक बीएचयू का स्टूडेंट जाकर के Hmm. कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई कर सकता है. मतलब इस लेवल का जब सोचेंगे नहीं तो दे वुडंट ट्राई. तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस प्रॉब्लम को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तब भी मुझे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता या फिर ये नहीं हो सकता, राइट. ऐसे कुछ कुछ इंस्टेंसेस मेरे साथ भी रहे हैं जहाँ पर उनको लगा है. बट द थिंग इज दैट बट मुझे मैंने सच बताऊँ तो मैंने BHU चूज़ किया है. मैं ना मैंने मेडिकल की लिए तैयारी की थी, कुछ नहीं. मुझे zoology पढ़नी थी, इसीलिए मैं BHU आया. और मुझे लोगों ने बताया था कि कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने बात किया, वो बताए थे कि BHU ही बेस्ट है फॉर zoology. और मैं आया, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने ट्राई किया, मैंने शुरू किया धीरे धीरे, और मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस किए, और उसी से मुझे मालूम हुआ कि क्यों नहीं हो सकता. जहाँ पर इतने सपोर्टिव फैकल्टीज़ हैं जो आपको अचीव करने में हेल्प करते हैं, जो आपको रिस्क लेने के लिए सपोर्ट करते हैं. एंड इन दैट केस अगर आप वो रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे होगा. हम भी एक बहुत सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं. कभी हम भी खुद नहीं सोचे थे कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हो सकता है. बट द थिंग इज दैट हम लोग जब ट्राई किए, एक एक करके दरवाजे खुलते गए, तभी वो हुआ. तो इसीलिए जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप दुनिया भर के लोगों से बात नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो मैंने किया था, तभी जाके मेरी आंखें खुली थी. एंड देन ओनली आई वाज एबल टू
थी कि हाँ हम भी कर सकते हैं, देयर इज अ चांस। और वही एक स्लिवर ऑफ होप था, एक वो एक चमक थी, और उसी को हम खेल गए। होता है ना, एक दांव लगा दिए कि होगा कि नहीं, अब हो गया, इट वर्कड आउट। इसीलिए ये रिस्क लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से। हो ही सकता था कि सब कुछ कर जाए। ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम लोग शुरू किए, खत कर ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी आज आके कर रहे हैं। इसीलिए जब तक आप गिव अप नहीं करेंगे और आप वो फोकस रखेंगे, आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। और जितना हो सके अवेयरनेस बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। इंटरनेट है, उस पर सब कुछ मिलता है, मैंने भी वहीं से सीखा है। फेसबुक ग्रुप्स है, ट्विटर है, मास्टरडॉन है, देन आपका लिंक्डइन है। बात कीजिए लोगों से, उसी से ही आप जान पाएंगे कि कैसे होगा। एंड उसी से मैंने भी खुद इसी से फ्रॉम स्क्रैच ना, हमारा कोई फैमिली का कोई वो है कि कोई बाहर गया है, मैं ही पहला हूँ। तो इसीलिए ये बताएंगे कि ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और फिर आज हम आपके सीनियर्स हैं, जो बीएचयू के स्टूडेंट्स, आप अगर आप कभी हमसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लासमेट्स हैं जो बाहर हैं अभी, जो उन्होंने भी इक्वली वेल काम किया है। सो इसीलिए डेफिनेटली, और हम आपके सीनियर्स हैं, हम भी आपको हेल्प गाइड करने का कोशिश करेंगे जितना हो सके। आपके टीचर्स हैं, सो डेफिनेट जस्ट करिए। माय ओनली सजेशन इज़ कि आप रिस्क लीजिए, आप एक्सपीरियंस बढ़ाइए, आप सीखिए। इससे आपका कभी कुछ कम नहीं होगा। आप डेफिनेटली और ज़्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ेगी, वो कभी घटेगी नहीं। थैंक यू। उस बैच में दो और दो स्टूडेंट थे, एक ऋतुव्रता, जहाँ तक मुझे याद है, एक चारू, और दोनों मतलब हमेशा उनका पूरा फोकस जो है वो रिसर्च पे लगा रहता था। और कई बार तो मुझे ये बोलना पड़ता था कि थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, नहीं तो बहुत कम मार्क्स आएंगे। और फिर आजकल मार्क्स जो है वो जोड़ करके जो है पीएचडी में एडमिशन होता है। तो इनका ये सोच ही नहीं था। उनका ये था कि हम बाहर से पीएचडी करेंगे, हमारे मार्क्स से क्या लेना देना हमको, लेकिन हमको रिसर्च करना है। और इन लोगों ने जो भी मैं दिया, जो भी व्हाटएवर क्वेश्चन आई यूज्ड टू गिव देम, इतने बेहतरीन तरीके से ये दोनों सॉल्व करते थे। इन दोनों की केमिस्ट्री भी रिसर्च की बड़ी ज़बरदस्त थी। और आज एक कैम्ब्रिज में है, दूसरा ऑक्सफोर्ड में है। तो ऐसा नहीं है कि बीएचयू के स्टूडेंट जो है वो, बीएचयू बहुत छोटी जगह है और कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड बहुत बड़ी जगह है, और ये वहाँ जा कर के भी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए दिस इज जस्ट लाइक ए रैंडम प्रोसेस, जैसा एवोल्यूशन में बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रैंडम होती है, कि ऋतव्रता और चारू, ये इन लोगों की मेहनत नहीं थी, ये लोग रैंडमली पहुंच गए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अपनी एरिया में दे आर डूइंग वेरी एक्सीलेंट। मतलब इतना ज़बरदस्त ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में और भी लोगों से जो वहाँ के फैकल्टीज़ हैं, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट देम। तो हम लोगों को जान के इतना अच्छा लगता है कि हम लोगों को ये लगता है कि हमारा हर एक स्टूडेंट जो है वो बाहर जा कर के बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो ये जो झिझक है आप लोगों के अंदर, और ये सोचना कि ये सब बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब एक बार आप थोड़ा-सा ऋतुव्रता से हम ये भी जानना चाहेंगे कि बीएचयू के बारे में इनका क्या कहना है? बीएचयू ने इनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया? कि आज डेफिनेटली बीएचयू अगर नहीं होता तो मैं भी नहीं जा पाता। मेरे लिए जर्नी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ना मैंने मेडिकल की तैयारी की, मैंने कहा, ना मैंने नीट जेई की तैयारी की। मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत पैशन था। तो इसीलिए मेरे भी जितने मेरे एक्वेंटेंसेस थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि बीएचयू जाओ, बहुत बढ़िया वहाँ पर पढ़ाते हैं। सो मैं सिर्फ बीएचयू का एग्ज़ाम दे के आ गया। आके मैंने पहले से दिमाग में रखा लिया था कि हाँ हम काम करेंगे। सर का नाम भी जानते थे, रस्तोगी मैम का नाम भी हम सुने थे, दोनों के थोड़े थोड़े पेपर्स भी हम पढ़ने लगे थे फर्स्ट ईयर से ही, कि हमें रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे हम भी ढूंढने गए, हम चले गए डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ। हमारी सबसे पहली लैब एक्सपीरियंस हुई थी राकेश सर के लैब में, जो हमें थोड़ा वेस्टर्न जो हमें थोड़ा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फिर पीसीआर चलाना, फिर पीसीआर तो नहीं सॉरी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेसिक टेक्निक सिखाने लगे। ठीक है, उस वो सब हम सीखे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी उसी के साथ इंटर्नशिप भी लगी बैंगलोर में, उस पर मैंने काम किया। फिर आके मैंने रस्तोगी मैम और सर दोनों के साथ डिफरेंट एरियाज़ में मैंने काम करने का कोशिश किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सब कुछ में ही था। और फिर और वो है कि अब और मैंने उन सारे प्रोजेक्ट्स को फिर लीड किया, और टू एन एक्सटेंड उनको प्रोग्रेस में लाके उसको ख़त्म, कुछ कुछ जगह पे कंप्लीशन तक भी लाए, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया हूँ। और मैं सच बताएं तो बीएचयू में वो सब कुछ है, आपको बस थोड़ा ढूंढ लेना पड़ेगा।
बीएचयू का बस यही है कि इतना बड़ा जगह है, इतना इट्स अ ह्यूज प्लेस, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और पर इतने सारे फैकल्टीज़ बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। अभी जैसे आप लोगों का बहुत वर्कशॉप्स होते हैं जो बीएचयू के डिपार्टमेंट में ही कन्वर्ट करते हैं। मैंने अपने आर प्रोग्रामिंग का सबसे पहला वर्कशॉप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स में ही किया था बीएचयू में। ऑनलाइन प्रोग्राम हुई थी, उसी से मैंने सीखा है, शुरू किया है सीखना। तो आप बीएचयू में बस खोजिए, लोगों से बात कीजिए। अभी तो आपका वेबसाइट वेबसाइट में ध्यान रखिएगा, सब वेबसाइट से, हम लोग तो वेबसाइट से ही देखते थे सब कुछ, इसीलिए आप बस थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए बस, और कुछ नहीं। सब बीएचयू आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ बाकी दे देगी, बिकॉज बीएचयू इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू डू zoology इन इंडिया, अनडाउटेडली। आपको जो है एक बार बीएचयू में आने के बाद जो फीलिंग आई थी, और जो आपके कलीग्स थे साथ में, उनके साथ आप लोगों का जो इंटरेक्शन था, फिर उसके बाद भाई बनारस एक ऐसा अलग ही नशा है जो कि जो भी यहाँ आता है पहले तो उसके लिए कल्चरल शॉक होता है या बहुत सारे शॉक्स लगते हैं, लेकिन बाद में वो यूज टू हो जाता है इन सारी चीज़ों का। तो क्या आप कैम्ब्रिज जा करके भी बनारस को मिस करते हैं? 100% करते हैं, हर क्या दिन मिस करते करते हैं हैं। आप बनारस का? सबसे पहले तो वही, सुबह आराम से उठिए। पहली बात तो गंगा का घाट है नहीं, 80 घाट को तो बहुत मिस मिस करते हैं। फिर दूसरा है कि ये जो बनारस की गलियां तो हो ही गई, पर ये बीएचयू के अंदर का जो सुकून भरा एटमॉस्फेयर वो नहीं मिलता है कहीं और और लास्टली चाय की टपरियाँ बड़ी मिस करते हैं। हम तो बड़े चाय के दीवाने हैं, वहाँ मिलता नहीं है, तो बड़े मिस करते हैं। वही हम लोग हमेशा याद करते हैं कि अरे यार, पीटी पे छोला समोसा खाना मिस करते हैं कि हम तो थोड़ा फूडी है, क्या करें। तो ये चाय चाय छोला समोसा ये तो मिस करते हैं, कि खाना थोड़ा हमारे दिल वो है वो तो खूब मिस करते हैं। और बाकी सब तो मतलब वहाँ पर बहुत बिजी लाइफ है, बहुत हेक्टिक लाइफ है, बट बीएचयू में जैसे बिजी होने के साथ ही साथ एक सुकून भी था, वो बहुत मिस करते हैं हम। तो जब भी मौका मिलता है हम आ जाते हैं, जैसे अभी आ गए हैं। लेकिन आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि ऋतुव्रता यहाँ से जाने के बाद और भी वहाँ भी वेट गेन कर लिए। तो ऐसा नहीं कि अपना खाना पीना छोड़ दिए हैं, ये वहाँ भी जा कर के खा पी रहे हैं खूब अच्छे से। तो बीएचयू का जो अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, वो एक नशा है जो बाद में लोगों को लगता है कि जब तक आप हैं तब तक उस नशे का आनंद ले लीजिए, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर दोबारा यहाँ आने का जब मौका नहीं मिलता तो बहुत लोग मिस करते हैं। अब ऋतुव्रता, इसके अलावा आप अपना, क्योंकि आप आगे चल कर के एक हमारी मनोकामना है, हमारी ये विशेष है कि आप एक बहुत बड़े रिसर्चर बने, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च ही किया, आपने इवन रिसर्च ग्रांट्स भी लिखे और रिसर्च ग्रांट्स को आपको मिले हैं, दो दो ग्रांट्स आप लोगों को मिले हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रेजुएट लेवल पे कोई पर्सन रिसर्च ग्रांट्स मिलती है उसको। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट जो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में है वो कैसे डेवलप हुआ? जी, थैंक यू, बिल्कुल। पहले इकोलॉजी एवोल्यूशन में मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था, ऐसे ही, क्योंकि मेरा घर थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, थोड़ा वाइल्ड एरिया था आसपास, तो मैं हमेशा ऐसे ही सुबह उठ के चिड़िया देखता था, ऐसे चींटी वींटी देखते थे, इंसेक्ट्स देखते थे, उसी में थोड़ा मज़ा आता था। फिर नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल तो था ही, वही बचपन से देखे हैं। उसी का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर जब बीएचयू में आए तो मुझे मेरा पहला इंटर्नशिप जो था वो इकोलॉजी में ही मिला था। मुझे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, मुझे उसको ट्राई करना था। तो एक बार जाने के बाद तो फिर वही एंट्स और इंसेक्ट्स को देख के मेरा उसी में बस दिल लग गया, और उसी से सब अभी वही अब मैंने अपने आप को उसी में पूरा लीन कर दिया है। बट और इकोलॉजी एवोल्यूशन मेरा और एक है कि पूरा मुझे नेचुरल लाइफ को लेके, स्पेशली नेचर नेचर को लेके, थोड़ा कंजर्वेशन को लेके मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर इसी में मैं अपना ज़िंदगी का काम कर सकता हूँ, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। और दूसरा, जैसे आप ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। ऐसा नहीं कि पहला ग्रांट है ये, मतलब ऐसा नहीं कि ये पहला ग्रांट लिखे और पहला ग्रांट मिल गया। हम लोगों ने सर के साथ भी बैठ के एक दो ग्रांट्स ट्राई किए थे, रिजेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद भी और ट्राई किए, रिजेक्ट हो गए थे। फिर बार बार करते करते थोड़ा पॉलिश हुआ, थोड़ा हमारी भी मैच्योरिटी बढ़ी, थोड़े हमारे भी स्किल सेट्स बढ़े।
धीरे धीरे उसी के साथ फिर फाइनली लक, कहीं पर थोड़ा लक का भी फैक्टर था, कहीं पे थोड़ा वो भी था कि हाँ अभी एनफ हमारे पास एक्सपीरियंस आ गई थी जो पहले नहीं थी, उसके बाद मिला। सो हाँ, सब कुछ का कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप पहले बार ग्रांट लिख के आपको मिल ही जाएगा, ये तो सर खुद ही बताएंगे एज अ रिसर्चर कि ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है। ये है। और मेरा आगे का मनोकामना यही है कि मैं रिसर्च में ही रहूंगा, अभी पीएचडी करके फिर पोस्ट डॉक, और फिर मन है तो एकेडेमिया में ही रहने का। पर ये भी मन है कि थोड़ा पॉलिसी बेस्ड काम भी करेंगे, ताकि जो हम सीखे हैं उसको डिलीवर कर सकें, थोड़ा ग्रास रूट कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। सो अभी के लिए वही थोड़ा एग्रीकल्चरल, क्योंकि मेरा काम थोड़ा, मैं काम से, जो मैं इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन का काम करता हूँ, उसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। तो इवन बायो इंजीनियरिंग में हो सकता है। तो इसीलिए मेरा मन है कि एकेडेमिया में रिसर्च के साथ ही साथ थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड काम भी करे, ताकि थोड़ा लोगों का, बाकी पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का भी थोड़ा भला कर सके। वेरी गुड। और ऋतुव्रता का ये मानना है कि आप बीएचयू अगर आते हैं पढ़ने के लिए तो ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई करिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखिए, यहाँ की लाइफ को एंजॉय करिए और उसके साथ जो आपका फोकस है उसको कभी मत भूलिए, अपने फोकस पे लगे रहिए और इस तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में ही रिसर्च करें, सबके अपने अपने रिसर्च एरियाज हैं और आप उस एरिया को एक्सप्लोर करें। और ऋतुव्रता ने जो आज प्रेजेंटेशन भी दिया था उस पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो काम किया था, मतलब इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि जब ये पेपर पब्लिश होगा तो बिल्कुल हम लोग आप लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। और हम लोगों की तरफ से ऋतुव्रता को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ये हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी इंडिया आए बीएचयू जरूर आए, मुझे लगता है कि वो बीएचयू का नशा इनको खींच के ले आएगा, वो चाहिए ही चाहिए इनको, बिना उसके ये लोग रह नहीं पाएंगे। तो और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। और हमारे लिए एक बड़े ही गर्व की बात है, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि ये लोग वहाँ हैं, विश्वविद्यालय के झंडे का जो है झंडा उठाए हुए हैं और आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों बाद जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तब तक ये लोग और भी आगे पहुंच चुके होंगे और भी बहुत सारे इंटरव्यूज इनके आ चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऋतुव्रता, थैंक यू वेरी मच सर बनारस फॉर आने के इनवाइटिंग लिए, मी। बीएचयू आने के लिए, हम लोग को इतना माय टाइम ऑनर देने के सर। लिए। थैंक यू।